हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं टीजीटी सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ था 10 नवंबर 2025 को शिफ्ट 1 में, उसका इंग्लिश पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन आ रखा है तो हम क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट हैज़ करेक्टराइज द रीसेंट ट्रेंड इन द इवोल्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज कोलैबोरेशन अमंग वेरियस ग्रुप्स इंपॉर्टेंट इन एआई डेवलपमेंट। Question number 3. What potential does AI integration hold for the healthcare industry? Question number 4. Select the most appropriate title of the passage. Question number 5. Antonym of the word unprecedented. अब हम पैसेज पे आ जाते हैं। देखो, the evolution of artificial intelligence has witnessed unprecedented growth in recent years, marking a significant milestone in technological advancement. As machine learning algorithms continue to evolve and become more sophisticated, they have begun to surpass human capabilities in several fields, demonstrating remarkable efficiency and accuracy. The integration of AI in healthcare, for instance, promised to revolutionize diagnostic and treatment plans, offering the potential for more personalized and effective medical care. AI's ability to analyze vast amount of data quickly and accurately can lead to earlier detection of disease and more precise treatment recommendations, ultimately improving patient outcomes. However, despite these promising advancements, ethical concern about AI autonomy remains unresolved. The potential of AI system to operate independently raises questions about accountability, transparency, and the potential for unintended consequences. Ensuring that AI technologies are developed and deployed responsibly is essential to prevent misuse and to protect individual rights and societal values. Balancing technological advancement with moral responsibility is a critical challenge for the future, requiring ongoing dialogue and collaboration among technologists, ethicists, policymakers, and the public. As we continue to push the boundaries of what AI can achieve, it is imperative to address these ethical considerations to ensure that the benefits of AI are realized in a manner that is fair, just, and useful for all. अब क्वेश्चंस दोबारा रीड आउट कर लेते हैं। व्हाट हैज़ करेक्टराइज द रीसेंट ट्रेंड इन द इवोल्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन क्या है? अनप्रेसिडेंटेड एंड नोटेबल एक्सपेंशन, unresolved conceptual complexity, decrease in machine learning capabilities, stagnation in technological advancement. तो AI मतलब करेक्टरिस्टिक क्या है रीसेंट ट्रेंड इन द इवोल्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो यहाँ पे भी लिखा है अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ इन रीसेंट ईयर्स, मीन्स अनप्रेसिडेंटेड है एंड नोटेबल एक्सपेंशन है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, why is collaboration among various groups important in AI development? To speed up the launch of new products, to address ethical and societal concern, to make AI more expensive, to train AI faster. देखो सारे ग्रुप्स से कोलैबोरेशन करना क्यों इम्पोर्टेंट है एआई की डेवलपमेंट के लिए? टू एड्रेस एथिकल एंड सोसाइटल कंसर्न। ऊपर पूरे पैराग्राफ में यही बताया है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट पोटेंशियल डज एआई इंटीग्रेशन होल्ड फॉर द हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज? स्लोइंग डाउन द ट्रीटमेंट प्रोसेस, गलत हो गया। बहुत फास्ट हो गया है, प्रिसाइज हो गया है, फास्ट फॉरवर्ड कर देता है और वास्ट भी कर देता है। डिक्रीजिंग द एक्यूरेसी ऑफ डायग्नोस्टिक, गलत, इंक्रीज कर दिया है। रिड्यूसिंग द नीड फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशंस, रिवॉल्यूशनाइज डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट प्लान्स। यस, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। पैसेज में आपको यही लाइन लिखी दिख जाएगी। Question number 4. Select the most appropriate title of the passage. Ethical dilemmas in medical practices in the contemporary age, balancing progresses and ethics in artificial intelligence, dangers of artificial intelligence and the end of humanity. नहीं, ये तो हो नहीं सकता। डेंजर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसा कुछ डिस्कस नहीं किया है। क्या डिस्कस किया है? बैलेंसिंग प्रोग्रेस एंड एथिकल इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड अनप्रेसिडेंटेड। यहाँ पे अनप्रेसिडेंटेड का क्या मतलब है? नेवर हैपन और एग्जिस्ट बिफोर, मतलब नेवर हैपन, पहले हुआ ना हुआ ऐसा कुछ, हैपन और नेवर एग्जिस्ट बिफोर।
बिफोर। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? जो पहले से ही एग्जिस्ट करता हो और पहले हो भी गया हो। अनमैच्ड। अनमैच्ड का क्या मतलब होता है? अनइक्वल्ड। यहाँ लिख देती हूँ, अनइक्वल्ड। डिलेड, जिस किसी चीज़ को जो डिले कर दिया हो, पोस्टपोन कर दिया हो, पोस्टपोन। और लेट। ऑटोमेटेड। ऑटोमेटेड मतलब operated by machines or technologies with little human control. Operated by machines or technologies with little human control. फेमिलियर। फेमिलियर मतलब जो कॉमन हो, ऑलरेडी नोन हो। हमारा एंटोनिम क्या हो गया? अनप्रेसिडेंटेड का फेमिलियर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम प्ले इट बाय ईयर। प्ले इट बाय ईयर का क्या मतलब है? टू हैंडल अ सिचुएशन एज इट डेवलप्स। मैं लिख देती हूँ, टू हैंडल अ सिचुएशन एज इट डेवलप्स मतलब बिना किसी चेंज के जो कोई सिचुएशन जिस रूप में डेवलप हुई है उसी रूप में उसको देख लेना। टू हैंडल अ सिचुएशन एज इट डेवलप्स without making a detailed plan in advance. Without making a detailed plan in advance. तुम्हारा आंसर क्या हो गया? टू डू समथिंग विदाउट स्पेशल प्रिपरेशन। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ईडियम क्या है? पैल्सी वेल्सी। पैल्सी वेल्सी का क्या मतलब होता है? फ्रेंडली इन अ वे दैट इज नॉट प्रॉपर और सिंसियर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये तो लर्न ही करना पड़ेगा। पैल्सी वेल्सी, फ्रेंडली इन अ वे दैट इज नॉट प्रॉपर और सिंसियर। Question number 8. Sentence of a paragraph are given below in jumbled order. Arrange the sentence in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph. देखो, A से B से C से या D से हमारे को बस स्टार्टिंग देखना है। This shift is perspective allows for a deeper understanding of the author's intent. This shift, कौन सी शिफ्ट? किसी चीज़ में आप शिफ्ट हुए होगे तो A से तो स्टार्ट हो नहीं सकता। B, however, upon closer examination inconsistencies in the timeline of events emerge. मतलब ये तो आगे का सेंटेंस है, स्टार्टिंग नहीं लग रहा, बी भी एलिमिनेट हो गया। इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में, द नरेटिव प्रेजेंट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड अकाउंट ऑफ द प्रोटैगोनिस्ट जर्नी। मतलब स्टार्टिंग में ही बता रहा है कि जो नरेटिव है उसने प्रेजेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड अकाउंट ऑफ द प्रोटैगोनिस्ट जर्नी। डी भी एक बार पढ़ लेते हैं। एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस सबटल न्यूसेंस इन करेक्टर मोटिवेशन बिकम्स अपेरेंट। मतलब जैसे जैसे जो स्टोरी वो आगे प्रोसेस की, तो डी से भी नहीं लग रहा स्टार्ट, तो सी से ही लग रहा है। तो सी, ए, बी, डी, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, select the most appropriate antonym of the highlighted word in the given sentence. The outcome of the vaccine test was consistent across all trial. Consistent का क्या मतलब है? Steady, uniform और not changing। मतलब सारे ही ट्रायल का, across all trials जो वैक्सीन का टेस्ट है वो सेम रहा, not changing।
स्टेबल, देखो स्टेबल तो सिनोनिम हो गया। इवन, इवन का मतलब होता है यूनिफॉर्म, और इक्वल तो ये भी सिनोनिम हो गया। स्टीडी, स्टीडी तो मैंने खुद ही लिखा है तो ये भी सिनोनिम हो गया। आंसर क्या हमारा हो गया? वेरिंग। वेरिंग का मतलब होता है चेंजेस और डिफर, चेंजेस और डिफर। Question number 10. Sentence of a paragraph are given below in jumbled order. Arrange the sentence in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph. देखो इसमें भी A, B और D से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले A पढ़ते हैं। It provides no guidance on the laws governing development. B पढ़ते हैं अब। It aligns with both static and dynamic teleology, which views organic forms as outcomes of law rather than chance. देखो सी से तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता, यहाँ पे ऑप्शन में भी नहीं दे रखा। अब डी पढ़ते हैं। पर्टिकुलरली इन द कंटेक्स्ट ऑफ वाइटलिज्म दिस थ्योरी सीम्स इररेलेवेंट टू बायोलॉजी। ए से नहीं लग रहा, बी से भी स्टार्ट तो होता नहीं लग रहा। एक बार डी से भी पढ़ के देख लेते हैं। डी के बाद क्या है? ए। देखो ए, इट प्रोवाइड्स नो गाइडेंस ऑन द लॉज गवर्निंग डेवलपमेंट। हाँ, वाइटलिज्म की बात हो रही है ना, तो फिर वो कोई गाइडेंस नहीं दे रहा है लॉ को गवर्निंग डेवलपमेंट। देन डी के बाद ए, फिर सी। दिस exposition fails to offer a systematic explanation of the laws of evolution. Then B, it aligns with both static and dynamic teleology, which views organic forms as outcomes of law rather than chance. Yes, डी से ही स्टार्ट हो रहा है, तो डी, ए, सी, बी। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11. Select the most appropriate one-word substitute for the underlined segment in the given sentence. To embrace the excitement of new destinations and constantly exploring different corners of the world, Alex keeps exploring new destinations during vacations. His friends call him a person who travels from one place to another place. तो एक बार ऑप्शंस के मीनिंग देख लेते हैं। नोमैड, नोमैड का मतलब होता है अ पर्सन हु ट्रेवल्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। लिंग्विस्ट इज अ पर्सन हु स्टडीज लैंग्वेजेस। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, अ पर्सन हु स्टडीज लैंग्वेजेस। Combatant, combatant is a person who takes part in fighting or war. A person who takes part in fighting or war. Aggressor, aggressor is a person who attacks or initiate conflicts. A person who attacks or initiates conflict. Question number 12. Select the option that can replace the underlined word in the given sentence with its correct spelling. देखो क्या है? How can I apologize to you for this embarrassing error? Embarrassing, यही इससे पहले वाली वीडियो में जो हमने 8 तारीख का पेपर किया था, थर्ड शिफ्ट का, उसमें भी यही वर्ड आया था रॉन्ग स्पेलिंग का। क्या होती है करेक्ट स्पेलिंग? डबल आर एंड डबल एस। डबल आर और डबल एस। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13. Select the option that rectifies the given sentence. She studied hard but and passed the exam with excellent marks. देखो बट और एंड एक तो दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे। कॉन्ट्रास्ट क्या है? बट कॉन्ट्रास्ट है, एंड किसी चीज़ को ऐड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है? उस स्टडी हार्ड, शी स्टडीड हार्ड, उसने अच्छा मतलब हार्ड बहुत ज़्यादा मेहनत करी, एंड पास द एग्ज़ाम विद एक्सलेंट मार्क्स। तो बट नहीं आएगा यहाँ पे, ओनली एंड आएगा। उसने ज़्यादा मेहनत करी तो वो एक्सलेंट मार्क्स से उसका एग्ज़ाम पास हो गया।
तो रिप्लेस बट एंड विद एंड. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 14. Select the most appropriate article to fill in the blanks. After much debate, they agreed to sign dash Paris agreement. देखो, कोई कोई स्पेसिफिक मतलब पेरिस का एक स्पेसिफिक एग्रीमेंट है ना, द पेरिस एग्रीमेंट, ये एक स्पेसिफिक एग्रीमेंट है, इसलिए हम यूज़ करेंगे द. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. Question number 15. Select the most appropriate option to fill in the blanks. The proposal was thorough dash it lacked practical applications dash it still received approval from the board. देखो कैसे क्या क्या वर्ड आ सकते हैं. देखो, जो प्रपोजल है वो एक थोरो है, और थोरो भी है, और फिर भी उसमें क्या है, लैक्ड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. मतलब यहाँ तो कॉन्ट्रास्ट की बात हो रही है, तो कॉन्ट्रास्ट कौन दिखा रहा है, बट. द प्रपोजल वॉज थोरो बट इट लैक्ड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस. बट आया है तो बट के साथ एंड आएगा. एंड इट स्टिल रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट. यहाँ ये एडिशन कर रहा है. एडिशन क्या है कि उसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की कमी थी, लैग्ड थी, फिर भी एंड इट स्टिल रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. Question number 16. Select the most appropriate antonym of the underlined word in the given sentence. The belligerent customer argued loudly with the store manager, refusing to back down and listen to any reasonable explanation offered. तो यहाँ belligerent का क्या मतलब है? belligerent का मतलब होता है hostile, aggressive. hostile, aggressive. बेलिकॉस का क्या मतलब होता है, एग्रेसिव. तो ये तो सिनोनिम हो गया बेलिजरेंट का. एक्रीमोनियस इज बिटर और एंग्री इन टोन, तो ये भी सिनोनिम हो गया, बिटर और एंग्री इन टोन, ये भी क्या हो गया, सिनोनिम. ओपिनियनेटेड, ओपिनियनेट मतलब जैसे मैं अपना ओपिनियन रख रही हूँ, तो उसका ही ये पास्ट पार्टिसिपल है. तो होल्डिंग स्ट्रॉन्ग पर्सनल व्यूज, स्ट्रॉन्ग पर्सनल व्यूज. एक्विस्केंट का क्या मतलब है, रेडी टू एक्सेप्ट और एग्री विदाउट प्रोटेस्ट. रेडी टू एक्सेप्ट और एग्री विदाउट प्रोटेस्ट. तुम्हारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 17. Select the most appropriate article to fill in the blanks. If no article is required, select no article required. The police are searching for dash 18-year-old boy. कौन सा 18-year-old नहीं बताया, बस बोला है एक 18-year-old बॉय को पुलिस सर्च कर रही है. तो हम क्या, देखो 18 साउंड कैसी आ रही है, वावल की, तो हम यूज़ करेंगे एन. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 18. सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड सेंटेंस. देखो क्या है, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. यहाँ पे जो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है ना, वो ये है. चारों में यही, इस वर्ड की स्पेलिंग गलत है. हमारे को यही पता होना चाहिए कि इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या है. किसकी, लेचरसनेस. लेचरसनेस की करेक्ट स्पेलिंग होती है, जब भी आपको किसी चीज़ की स्पेलिंग में थोड़ा सा भी डाउट हो ना, तो ऑप्शंस को छोड़, मतलब देखो मत, अपने आप ही खुद उस वर्ड की स्पेलिंग लिखो. देखो जैसे मैं लिख रही हूँ लेचरस, LECHO, सॉरी लेचरस, EROUS, LECHEROUS, लेचरस. यही करेक्ट स्पेलिंग है. ये किस ऑप्शन में है, देखो. नहीं, डबल आर आ गया, ये नहीं है. डबल एस नहीं. LECHEROUS, yes. Option number 3 is the correct answer. His lecherousness towards female colleagues made the workplace uncomfortable, promoting HR to address his inappropriate behavior formally.
Question number 19. Select the most appropriate option to rectify the grammatical error in the given sentence. She completed the task very perfectly ahead of the deadline. देखो very और perfectly दोनों ही words एक ही चीज़ शो कर रहे हैं, तो हम एक ही वर्ड यूज़ करेंगे क्या, perfectly. क्या, replace very perfectly with perfectly. She completed the task perfectly ahead of the deadline. Option number 1 is the correct answer. Question number 20. Select the most appropriate option that can substitute the underlined word in the given sentence. Due to health concern, the company's president had to step away from his position. Step away, यहाँ पे step away from his position का क्या मतलब है, to give up, मतलब या तो उन्होंने छोड़ दिया है या उन्होंने रिज़ाइन कर दिया अपने रोल से. टू गिव अप और रिज़ाइन फ्रॉम हिज रोल. तो क्या है, टू अप्रूव, रिलिंक्विश, क्लेम या होल्ड. होल्ड का मतलब होता है अभी रहना, उन्होंने तो छोड़ दिया, ये नहीं आएगा. क्लेम, किसी चीज़ को क्लेम कर लेना मतलब ले लेना, नहीं. अप्रूव, एक्सेप्ट कर लेना, नहीं. तो क्या आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. रिलिंक्विश, रिलिंक्विश को वॉलेंटरली गिव अप और सरेंडर समथिंग. वॉलेंटरली गिव अप और सरेंडर समथिंग. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. आई होप आपको भी 20 क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पे. थैंक यू. कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग.